Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So this is me Alia Wahid and this is from the Medicare channel. So in this video we are going to start exercise 4.3 and in the previous video we have discussed and solved all the questions from 4.2. If you have don't see this video, then go and check the link which is given in my channel, so that you can get whole concept of this four chapter from class 12. Now in this exercise we are going to find out that what is the equation of straight line and how to find the slope of this equation and of straight line. Now before we are going to discuss all of them, let's discuss what is the inclination of a line. So first of all, here the definition of inclination of a line is given, that the angle alpha. You can write alpha as theta. Okay, so there is no difference between both of them. So the angle for the inclination of line should be more than 0, mean alpha should be greater than 0 डिग्री, कि कभी भी आपका अल्फा 0 डिग्री पर नहीं बनेगा, 0 से ऊपर बनेगा, and less than 180. So it should be less than 180. It could be at the first quadrant and could be at the second quadrant, but not 0 or not 180. So if a line is making this kind of angle, then we call this line as a inclination of a line. So it should there are some more conditions for it, like it should be measured in anti-clockwise. Whenever you have to make an angle, you will make angle in this way, you will make angle like that. Okay, so इस तरह एक line आ जाएगी. So always you have to make anti-clockwise direction angle, not in clockwise. Okay, and from the positive axis, कि आप कभी भी negative axis से नहीं बनाएंगे, means not from here. Okay, always from the positive axis you will start your initial point of your angle, and you form a non horizontal straight line. always आपकी जो भी लाइन होगी वो कुछ इस तरह से होगी. अगर मैं इधर यहाँ पर कोई एक लाइन में ड्रॉ करूँ like this, so it is making a theta alpha angle. Okay, which is not 0, which is not 180. Okay, which is not 90 degree, and it is a non-horizontal. Okay, always the horizontal lines are like this. Okay, so these are two lines are horizontal from each other. Now and let's suppose there are some conditions, like if you let's suppose that you have make a line and which becomes parallel to each other like this. Now there is no angle between them because both of these x-axis and this line will become parallel, and they have the alpha is equal to 0 degree between them. Okay, so this is the case number one. You have to note these points as an important point because this can be given to you in the MCQs. Now let's suppose now this line is horizontal. Now let's suppose what happens when a line become verticals. So this is the case when this line become vertical. Now the angle between the x-axis and this line is become 90 degrees, so the alpha will become 90 degree. Okay, so these are the angles. So all of these lines are called as inclination of a line. Now in this exercise we have to find out the slope of this exercise. Now first of all, let's discuss what is the slope of straight line that is joining the 2 points. Let's suppose you have a line given which is passes through the 2 points, and the name of these 2 points are P and Q. The coordinates of point P is x1 and y1, and the coordinates of point Q are x2 and y2. Then we have to find out the slope or gradient, and the slope is represented by the m. Slope is also called as gradient. Okay, so there is no difference between a slope and a gradient. So this is the formula of slope which is given here. M means slope is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. So I can write x over y over x over here. Okay, and you know very well that always the perpendicular over base will form tan theta. Now as we have discussed theta as a alpha, so therefore I have written tan alpha, means your slope is equal to tan alpha, and alpha is the angle which is made with this line on the xy coordinate.
Now you have to find the slope of all of these lines with the help of this formula which is given to you. But you also have to prove some other formulas that the lines are parallel, the lines are, so always whenever the alpha is 0, you can always say that the lines are parallel to each other. And whenever you have given that alpha is 90 degree, you will suggest that they are at the degree, the x-axis is making the 90 degree with that line. So these are some concepts which you should be remains in your mind. Now let's discuss some important points for it and some important formulas. Then after that we will start our exercise. So here I have written some points here. Okay, you can clearly see here. So if the L is the line is horizontal, ठीक है, अगर वो horizontal हो जाएगी इस लाइन से हॉरिजॉन्टल हो गई है, अब अल्फा आपका क्या होगा 0 डिग्री, और स्लोप इसका क्या होगा m इज इक्वल टू 0, जहाँ मैंने लिखा हुआ है कि हमेशा अगर आपकी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी तो उनका स्लोप 0 होगा, ये आपने याद रखना है। देन अगर लाइन वर्टिकल हो, ठीक है, ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की थी, अगर लाइन इस तरह से वर्टिकल होगी तब आपके पास m जो उसका स्लोप होगा विच इज़ नॉट डिफाइंड, लेकिन अल्फा 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो इट्स मीन कि अगर आपका जो एंगल आता है वो 0 आता है या 90 डिग्री आता है, देन आप स्लोप को डिफाइन नहीं कर सकते, स्लोप 0 होगा या नॉट डिफाइंड होगा। और एक और चीज़ ये है कि अगर तीसरा पॉइंट ये है कि स्लोप ऑफ ए बी, कोई भी दो पॉइंट्स से आपने उसको स्लोप लिया वो ए बी है, और स्लोप ऑफ बी सी आपने एक और दो पॉइंट्स दिए और उनका स्लोप लिया, अगर वो दोनों स्लोप इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये जो तीन पॉइंट्स हैं ए बी और सी, ये आपस में कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर मौजूद है, ठीक है। सो इस तरह की भी चीज़ें आप प्रूव करेंगे। देन आप देखें कि अगर किसी दो पॉइंट्स का स्लोप इक्वल आ रहा है, सो इट्स मीन क्या है कि वो पैरेलल हैं आपस में। अगर m1 यानी स्लोप किसी एक पॉइंट का इज इक्वल टू -1 आवर m2 आ रहा है, सो इट्स मीन कि ये दो पॉइंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। या अगर इस तरह का फार्मूला आ रहा है m1 को, यानी एक पॉइंट की स्लोप को हम मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे पॉइंट की स्लोप से, और अगर उनका आंसर 1 आ रहा है, इट्स मीन कि ये दो जो लाइंस हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब एक और फार्मूला आता है स्लोप और इंटरसेप्ट का फार्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। ये वाला भी फार्मूला हमारा स्लोप कैलकुलेट करने के लिए, इसमें वाई इंटरसेप्ट है, एम हमारा स्लोप है, एक्स एक्सिस है, और सी हमारा इंटरसेप्ट है। सो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। सो अभी आपने ये इक्वेशन यूज़ नहीं करनी, अबाउट 4.3 के क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये इक्वेशन आप यूज़ करेंगे, बट हमारे वहाँ तक सिलेबस में क्वेश्चंस नहीं है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ करना है। सो अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये दिया हुआ है, दो पॉइंट्स ब्रैकेट में आपको दिए हुए हैं। अब आपने ये, मैंने वाई और एक्स कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं, उनकी वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, ठीक है, तो ये आप लोग भी लिख लेंगे। उसके बाद आपने अब लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करनी है। लाइक पहले हम लोग ये वाला पॉइंट ढूंढ लेते हैं, ठीक है। सो इसमें आपके पास क्या होगा, पहला पॉइंट, ठीक है, इसमें आपके पास लेट्स सपोज कि ये वाई x1 है, ये y1 है, ये आपके पास x2 है, और ये आपके पास y2 है। अब हमने ये दोनों पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। इसको मैं लेट्स सपोज कि p का नाम दे रही हूँ इस पॉइंट को, और इसको मैंने q का नाम दे दिया। अब मैं p और q दो पॉइंट्स जो है ड्रॉ करने लगी हूँ। ड्रॉ करने के बाद हमने उसको स्लोप फाइंड आउट करना है, बस यही काम करना है। सो अब x1 के लिए मैं सबसे पहले -2 है, सो ये x एक्सिस है, x एक्सिस से -2 यहाँ है, तो मैं इसके ऊपर डॉट लगा लूँगी। y जो है वो आपके पास 4 है, तो y4 आपके पास यहाँ पर आ रहा है। सो ये x2 और y4, इसके आगे मैंने ये पॉइंट लगा दिया। सो ये आपका पॉइंट P बन चुका है। अब हमने Q पॉइंट ढूंढना है, तो Q में x2 आपका 5 है, 5 यहाँ पर आ रहा है, और y आपके पास 11 है, और y11 आपके पास यहाँ पर आ रहा है। सो इट्स मीन कि ये आपका पॉइंट कहाँ पर बनेगा, 5 और यहाँ पर 11, ठीक है, ये आपने स्केल से ड्रॉ करनी है। सो अब आपके ये पॉइंट बन चुके हैं। अब आप इन दो पॉइंट्स को आपस में इस तरह से कनेक्ट कर दें। सो ये आपका P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है। अब आप देख सकते हैं कि दिस लाइन इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ना ही वर्टिकल है, तो m0 भी नहीं हो सकता है, m नॉट डिफाइंड भी नहीं है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि इसका स्लोप क्या है। सो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपल है कि आप वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो आप लोगों ने क्या राइट करना है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन
पी क्यू, ठीक है, मैंने नाम पी क्यू दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। सो मैं पी क्यू लिखूंगी, ठीक है। इज इक्वल टू, आप वही एम वाला फॉर्मूला लगाइए। एम क्या था, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 था, ओवर x2 माइनस x1 है। अब वैल्यूज पुट करते जाएं जो मैंने इधर लिखी थी। सो एम आपका इक्वल हो जाएगा, y2 आपका क्या है 11, और y1 क्या है 4 आपका है, ठीक है। x2 आपके पास क्या है 5 है, माइनस x1 क्या है -2 है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। m इज इक्वल टू आपके पास 11 माइनस 4 करेंगे आपके पास 7 आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और +2 आप लोग कर देंगे तो आपके पास 7 ही आ जाएगा, ठीक है। 7 और 7 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी आपका स्लोप 1 के इक्वल आ चुका है। सो अब आपको पता है कि आपका जो स्लोप है m इज इक्वल टू tan अल्फा के इक्वल होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। सो अब आपके पास अब हमने अल्फा फाइंड आउट करना है कि कितना डिग्री है, कितना एंगल है इसके दरमियान, यानी यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक्स एक्सिस इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए एम आपको पता लग चुका है कि 1 है, तो आप एम की जगह 1 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू tan अल्फा हो जाएगा। अब ये tan इस तरफ जा सकता है, ठीक है। तो जब tan उस तरफ जाएगा तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा। सो अब tan इनवर्स आपको पता है 1 जो है वो 45 डिग्री के इक्वल होता है। सो इट्स मीन कि आपका जो अल्फा है या आपका थीटा है वो 45 डिग्री है, यानी ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है, और स्लोप इसका 1 है। सो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। अब हम जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। हाँ जी बच्चों, से ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी वैल्यूज़ और पॉइंट्स आपको ये गिवन है, ठीक है। और अब हमने इनको फाइंड आउट करना है। पहले आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। 3 आप ढूंढेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। सो यहाँ पर आपको ये 3 मिल गया, और y -2 है आपका। सो ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये एक पॉइंट यहाँ है, लेट्स सपोज मैं इसको दोबारा पी का ही नाम दे रही हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं। सो x आपने 2 ढूंढना है, सो x2 यहाँ पर है आपका, और y7 आपका यहाँ पर है तकरीबन, ठीक है। अब आपका ये लाइन हो चुकी है। अब आप इसको इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। स्केल से रख के ड्रॉ कीजिएगा ताकि लाइन स्ट्रेट आए। अब आप लोग ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है, स्लोप फाइंड आउट करना है। y2 की वैल्यू आपके पास क्या है 7 है, माइनस y1 आपके पास -2 है, x2 आपके पास 2 है, माइनस x1 3 है आपके पास, तो वो राइट अप कर लें। अब ये माइनस माइनस प्लस हो, 7 8 9 आंसर आ जाएगा, और 2 -3 ये -1 आ जाएगा, ठीक है। सो इट्स मीन के -9 जो है वो आपका स्लोप आ चुका है। अब m की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, -9 tan इनवर्स जब वहाँ जाएगा तो -9 के इक्वल टू हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 96.34 डिग्री आंसर आ जाएगा, यानी एंगल कौन सा बना रहा है ये थीटा एक्स एक्सिस से 96.34 का एंगल बना रहा है। अच्छा बच्चों, कुछ चेंजेस कर लें कि अगर अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं तो गलत आंसर आता है हमारे पास। आपने को ने सबसे पहले क्या करना है कि -9 है ना, अब आपने क्या करना है, इसको बाहर लेके आना है, माइनस खत्म कर देंगे और 180 ले आएंगे, ठीक है। 180 माइनस, क्योंकि 180 से एंगल छोटा होना है, 180 माइनस tan इनवर्स +9 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस बाहर ले आई हूँ मैं। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 83.66, ठीक है। माइनस को नहीं लगाना, -180 कर दें, यानी 83.66 में से 180 माइनस कर देंगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमने इसी तरह ही सॉल्व करना है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में ये पॉइंट्स आपको गिवन है। आप पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 4 है आपके पास, सबसे पहले यहाँ पर 4 है, और y आपके पास 6 है। आपके पास ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये p पॉइंट हो गया, और q पॉइंट आपका x इज इक्वल टू 4 है, और y आपके पास इज इक्वल टू 8 है। ये तकरीबन यहाँ पर बनेगा पॉइंट। अब आप देख सकते हैं कि दिस इज द लाइन, दिस इज द क्यू पॉइंट। दिस लाइन इज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। इट्स मीन कि हमारे पास जो डिग्री है, द एंगल अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट वी हैव टू प्रूव दैट। Now, in order to now place these values, y2 is equal to 8,
minus y1 is 6, x2 is equal to 4, and x1 is equal to 4. So 8 minus 6 will be 2, and 4 minus 4 is equal to 0. So whenever the 0 comes in the denominator, it will become an infinity. So therefore the slope will become infinite. So I have told to you in the points that whenever the line is vertical, okay, whenever the line is vertical, m is not defined and theta is equal to 90. सो इट्स मीन कि आपके पास m इंफिनिटी आ चुका है, नॉट डिफाइंड, एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इट. सो as the m is equal to infinity, so tan inverse is equal to infinity, so it will becomes alpha is equal to 90 degree. Okay, now we are going toward the question number 2. We have solved all the three questions from the question number 1. Now move to the question number 2.